नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हिडन गुडविल। एक्चुअली हिडन गुडविल क्या होती है, सबसे पहले ये समझना होगा। जो इनकमिंग पार्टनर आता है वो अपने हिस्से की कैपिटल और गुडविल लाता है। हिडन गुडविल के केस में पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर से गुडविल नहीं मंगवाते हैं, लेकिन अपने प्रपोर्शन के बेसिस पर वो नए पार्टनर से कैपिटल ज़्यादा मंगवा लेते हैं और उस बैलेंस अमाउंट को हिडन गुडविल की तरह ट्रीट किया जाता है। अब मैं आपको समझाना चाहूँगी। जैसे सबसे पहले हम हिडन गुडविल एग्जाम्पल, लाइक ए एंड बी आर पार्टनर्स। इसकी कैपिटल 1,00,000 रुपीज़ है, इसकी कैपिटल 50,000 रुपीज़ है, और जो इनकमिंग पार्टनर सी आ रहा है उससे ये कैपिटल मंगवा रहे हैं 60,000 रुपीज़ फॉर 1/4 शेयर, राइट। इस केस में क्या होगा कि ए और बी जो ऑलरेडी पार्टनर हैं तो इनकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई? टोटल कैपिटल 1,00,000 प्लस 50,000 plus 60,000, it means 2,10,000 rupees। ओके, इनकी कैपिटल इस तरह से 2,10,000 हो गई है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैपिटल वुड बी, जो होनी चाहिए वो क्या होगी? कैपिटल firm's capital on the basis of न्यू पार्टनर के बेसिस पर अब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 60,000 इंटू शेयर शुड बी रेसिप्रोकल, तो 60,000 इंटू 4/1, दैट इज रुपीज़ 2,40,000। नाउ वी हैव टू फाइंड द हिडन गुडविल। फॉर्म की कैपिटल ये होनी चाहिए, एक्चुअल कैपिटल ये है, एक्चुअल टोटल कैपिटल ये है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगी हिडन गुडविल। हिडन गुडविल number 1 and number 2. So what we have to do? Number 2 minus number 1. What we have to do? Firm's capital minus actual total capital, that is hidden goodwill. So we are calculating the hidden goodwill in this manner. I will tell you one question of hidden goodwill. Balance of Angad and Neha, who are sharing the profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet is given on 31st March 2020. Sundry creditors 1,60,000, bills payable 1,00,000 rupees, reserve 50,000. Profit and loss account showed a balance in liability 11,000. Angad's capital 30,000 and Neha's capital is 20,000. Now asset side: cash at bank 20,000, sundry debtors 60,000, stock 70,000, fixed assets 2,20,000 and advertisement expenses 1,000 rupees. They admit Sohail as a partner on 1st April 2020 for 1/4 share in the profits of the firm. Sohail brings 50,000 rupees as capital but is unable to bring the amount of goodwill. Goodwill to be calculated on the basis of Sohail's share of profit and capital contributed by him. Give the necessary journal entry to record the goodwill. Firstly, we have to value the hidden goodwill. As per this question, it is given the the partners are Angad
Neha. And Sohail comes for 1/4 share, and they are sharing profits in the ratio 3:2. On this basis the profit should be 3/5 and 2/5. दोनों को प्लस कर लेंगे, ये इनका ओल्ड रेशियो आ गया. यहाँ सोहेल कम्स फॉर दिस along with the capital 50,000. Sohail's capital is 50,000 rupees. On the basis of Sohail's capital, firm's capital will be, firm's capital is 50,000 into 4/1, that is 2 lakh rupees. As per the old firm, Angad's capital is, नेट वर्थ हम निकाल लेंगे तो 2 लाख रुपीज़ ये आ गया. अब हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे. एडजस्टेड कैपिटल कैसे होगी? एडजस्टेड या एक्चुअल कैपिटल, हम अंगद की और नेहा की कैपिटल को ले लेंगे. 30,000 प्लस 20,000 एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपको दिया हुआ है. प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स शुड बी एडेड. रिजर्व है 50,000, रिजर्व को भी हम ऐड कर लेंगे 50,000 एंड माइनस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो कि 1,000 दिया हुआ है. सो ऑन दिस वे 50 and new partners capital also 50,000. Okay, 50, 60, 61 means 60,000 plus 1 lakh, it means 60 plus 1 lakh 60,000 rupees is net capital. ठीक है, एक्चुअल कैपिटल ये है, फर्म की कैपिटल ये होनी चाहिए. तो हिडन गुडविल इक्वल्स टू, हिडन गुडविल इक्वल्स टू 2 lakh rupees minus 1,60,000 rupees. Okay, it means 40,000 rupees is the amount of the firm's goodwill. Now we have to do the journal entry for the purpose of goodwill. यहाँ तक आपको समझ में आ गया? मैं एक बार फिर से समझाती हूँ. Angad, Neha, both the partners are there who are sharing the profits in the ratio 3:2. Now the Sohail comes to the admitted in the firm for 1/4 share with the capital of 50,000. नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो पूरी फर्म की एक्चुअल जितनी गुडविल कैपिटल होनी चाहिए वो आती है. तो टोटल कैपिटल आपकी कितनी आ गई? 2 लाख रुपीज़, जो कि नेटवर्थ भी कहा जाता है. एडजस्टेड कैपिटल जो एक्चुअल कैपिटल है 30,000 अंगद की है, 20,000 नेहा की कैपिटल है. उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करता है 11,000, 50,000 रिजर्व और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स जो एसेट साइड में दिए हुए हैं वो माइनस हो जाएंगे, प्लस नए पार्टनर की, इट मीन्स सोहेल की कैपिटल. तो टोटल मिलाकर इनकी एक्चुअल कैपिटल है आपकी 1,60,000. आउट ऑफ 2 lakh, 1,60,000 इज एक्चुअल कैपिटल. सो अकॉर्डिंग टू द differences 40,000 is the firm's goodwill, firm's hidden goodwill. अब हम इसमें से सोहेल की गुडविल को निकालेंगे. फर्म्स हिडन गुडविल आ गया. अब हम इस बेसिस पर सोहेल के हिस्से की गुडविल कैलकुलेट करेंगे. Sohail's goodwill, it should be calculated on the basis of 1/4. तो 40,000 से
फॉर्म की गुडविल इतनी थी, 1/4 किया, कितना हो गया 10,000 रुपीज़। क्लियर। अब हमें ये पता है कि जब फर्म से शेयर लिया जाता है तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है, इसलिए जो गुडविल 10,000 रुपीज़ है इट शुड बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे। अब क्योंकि हम यहाँ गुडविल नहीं बता रहे हैं, हिडन है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो हमारी एंट्री हो जाएगी सोहेल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अंगद्स कैपिटल अकाउंट एंड टू नेहाज कैपिटल अकाउंट। 10,000 रुपीज़ है इसकी गुडविल। 10 को आप 3 और 2 में डिवाइड करेंगे तो 6,000 क्रेडिटेड टू द अंगद्स कैपिटल अकाउंट एंड 4,000 क्रेडिटेड टू नेहाज कैपिटल अकाउंट। इस तरह हम कैपिटल का गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। बिकॉज इन दिस क्वेश्चन गुडविल इज हिडन, so you are not supposed to use the word goodwill. What you have to do, gainer to sacrificer और incoming partner to old partners entry हो जाएगी।